Hello. Hello. Am I audible? Yes, yes. Huh? Hello. Shall we begin the Yes, ma'am, webinar, you are sir? audible. Okay, okay. Hello, namaste, and a very good afternoon, everyone. I am Priyanka Ashok Deshpande, LLM first year student of Dayanand College of Law, Latur. On behalf of Dayanand Education Society and Dayanand College of Law, Latur, today I welcome our resource person, Dr. Mangal Singh Bisain, sir, Assistant Professor, Narayan Rao Chauhan Law College, Nanded. Our principal in charge, Shetty. I request the participants to please mute their mic. Thank you, sir. Today I welcome our resource person, Dr. Mangal Singh Bisain, sir, Assistant Professor, Narayan Rao Chauhan College, Law College, Nanded. Our principal in charge, Dr. Poonam Nathani, ma'am, coordinator of today's webinar, Assistant Professor Katikar, sir, all teaching and non-teaching staff, and especially the last year students, the second year students of LLM, on the webinar organized on dissertation writing, specially for them. I now request our principal, Dr. Poonam Nathani, ma'am, to welcome our guest. I apologize. I now request our uh, teaching staff and non-teaching staff to kindly welcome our resource person. Dr. Mahajan, ma'am, Yes, sir. ma'am, I request you to welcome our resource person. Very good morning to one and all. Today, I want to welcome Bisain sir on this occasion, and he is going to deliver lecture about and guiding about how to prepare dissertation and uh, go for the specific research and giving his valuable guidance on this. On behalf of Dayanand Education Society's Dayanand College of Law, I am welcoming sir. Please welcome sir and have a nice lecture. On behalf of principal also, I am going to invite you sir for these lectures. Thank you. Thank you, ma'am. Actually, sir, our principal in charge, Dr. Poonam Nathani, ma'am, is scheduled with another meeting right now, and so she is unable to join the webinar. So I humbly apologize on her behalf. I now request our librarian, Dr. Sangeeta Mahajan, ma'am, to give a kind introduction and a detailed introduction of our resource person. Good morning to dear students and today's chief guest of this program. Dear students, our today's guest, Dr. Mangal Singh Bisain sir, he is ex-faculty of GEDU College of Business Studies, GEDU Bhutan, and also ex-visiting faculty of Social Science Department, Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded. Currently, sir is working as Assistant Professor Narayan Rao Chauhan Law College, Nanded, and having more than 9 years teaching experience. Sir, bearing academic qualification as LLB, LLM, and sir qualified NET in two subjects, that is law and criminology. Then sir is having more than 19 research papers presented and published at various regional, national, and international level. And he is having one remarkable publication, presented paper in international conference organized by Gujarat National Law University, Gandhinagar, Indian Institute of Management, Ahmedabad, and Indian Institute of Technology, Kanpur. One research project is also granted to sir, that is, and he completed his research project in defacement property, a case study
with special reference to Marathwada region of Maharashtra. He also invited as a resource person and gave lectures in more than 14 various colleges, SR Swami Ramananda Tirth Marathwada University, UGC Human Resource Development Center, MITCON, CMEGP, that is Directorate of Industries, Government of Maharashtra, and many other places. So such a learned personality is going to deliver us lecture on this occasion. So I welcome sir. Over to Priyanka. Thank you, ma'am, for introducing our resource person. As we all know that dissertation are important method of demonstrating that you can identify a topic of concern to the field and read, understand, and incorporate the relevant literature into a new research question to be investigated. So, to understand the concept in detail, I now request our resource person to guide our students. Okay, thank you, Priyanka. First of all, I would like to take this opportunity to thank the principal, Nathani ma'am, and Umesh sir for organizing this event and calling me as a resource person to deliver a lecture. And I also thank Mahajan ma'am for giving my introduction. With this, just give me a second. I'll share my slide with you. Okay, is the PPT visible to everyone? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So the topic, as you already know, for today's guest session is writing dissertation skills. So here we are going to discuss the very basics of dissertation writing. In this session, these are the things that we are going to discuss. See, before we start with our session, let me clarify a few things to you. First one is I am going to use all the three languages, English, Hindi and Marathi during my discussion. मेरा ऑब्जेक्ट आपके कंसेप्ट्स क्लियर करना है, ना कि मेरा नॉलेज आपको बताना है. डेजर्टेशंस कैसे लिखने हैं, उसके क्या बारीकियां हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है बताना. इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ, राइट? सो लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर इन आवर डिस्कशन. I can speak fluent English, I can speak fluent Hindi, I can speak so Marathi, right? And these are the languages that we will be discussing. In the languages we will be discussing our today's topic. The second important thing before we start with our discussion is, if you have any questions, please ask them at the end of the session. I know you must be having a lot of questions about how to write dissertation, and there may be a lot of confusion also, right? So whatever doubts, confusions you have, you can ask at the end of the session, because in between there are various things that we are going to cover. And if you have any doubt, any question right now in your mind, it may get clarified during the session itself, right? So these are the two things that I need to clarify. Now let's start with the presentation. So what is the object of today's presentation? Even though the title of today's presentation is Basics of Dissertation Writing, कि डेजर्टेशन कैसे लिखना है इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द बेसिक्स ऑफ राइटिंग स्किल्स. और ये जो स्किल्स है, जैसे आप डेजर्टेशन लिखेंगे वैसे वो स्किल्स, वही स्किल्स आपको पीएचडी थीसिस लिखने में भी काम आएंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट लिखने में भी काम आएंगे, या फिर आर्टिकल्स लिखने के लिए. और अगर आप में से कोई जज है या जज बनता है तो वहां पे जुडिशियल डिसीजन देने में भी काम आएंगे. तो ये सभी स्किल्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? कुछ चीजें कॉमन है, राइटिंग स्किल्स कॉमन है, रिसर्च कॉमन है इन सब चीजों में. सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर. सो हियर व्हेन वी आर डिस्कसिंग द डिसर्टेशन राइटिंग, वी आर डिस्कसिंग द वेरी बेसिक्स ऑफ रिसर्च राइटिंग. सेकेंड थिंग,
टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन LLM डिसर्टेशन राइटिंग। सो LLM का डिसर्टेशन जब लिखते हैं तो क्या बेसिक चीजें है, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो फॉलो करना जरूरी है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, understanding with examples, case laws and current events. So here I'm going to give you the different examples, case laws, current events, right, citations in order to explain my point of view. Dissertation कैसे लिखना है इसके ऊपर अगर एग्जाम्पल्स से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मैं सिर्फ आपको ड्राइली बताते जाऊं कि रिसर्च क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा एंड थोड़ा सा व्हाट डू यू से, इट विल स्किप योर माइंड। अभी तुम्हारा आपके समझ में आ भी जाएगा लेकिन बाद में आप शायद उसको भूल भी जाएंगे। लेकिन एग्जांपल्स, केस लॉस से अगर आप समझेंगे, सिचुएशंस को देख करके अगर आप समझेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा बेटर तरीके से, ज्यादा लंबे ड्यूरेशन तक आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रेजेंटेशन टुडे। अगेन बिफोर we start with our presentation, there is one very important thing that I especially need to tell all the LLM students. Okay, this is something that I tell my law graduate students. This is something that I tell my LLM graduation students. Okay, PG students, do it yourself. एक नया ट्रेंड जो आज हमको देखने को मिल रहा है, being a faculty of a law college, what we are generally seeing is आजकल हर चीज का आउटसोर्सिंग हो रहा है। शायद आपके कॉलेज में नहीं होता होगा या होता होगा कि एक ट्रेंड है कि रिपोर्ट बाहर से कहीं से बना के लेना है। ऐसे मत करो, डोंट डू समथिंग लाइक दिस, डू इट योरसेल्फ। सी, डिसर्टेशन राइटिंग मे बी डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, राइट? इट इज नॉट इम्पॉसिबल। व्हाट वी सी being a faculty of law, what we see is student go to some XYZ person or to XYZ Xerox center, वहां पे वो पूछेंगे भाई कौन सा डिसर्टेशन अवेलेबल है, वो बता देगा ये टाइटल है, ये टॉपिक है, इसके ऊपर अवेलेबल है, एंड वो स्टूडेंट वही टॉपिक लेकर के अपने गाइड के पास आते हैं, फैकल्टी के पास आते हैं और टॉपिक फाइनल कर लेते हैं। सर मुझे इस पर डिसर्टेशन लिखना है। एंड व्हाट हैपेंस कि वो डिसर्टेशन उसके पास रेडीमेड रहेगा, बस वही डिसर्टेशन ला लिया, उसके ऊपर अपना नाम लगा दिया, प्रिंट करके सबमिट कर दिया और बदले में उसको 5,000 10,000 रुपए दे दिए। ये ट्रेंड हमको आज के डेट में देखने को मिल रहा है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट follow this trend, don't go into such kind of wrongful habits. It is highly unethical and it is not accepted. डिसर्टेशन लिखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी तुमको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि जिसके लिए आप 5,000 10,000 खर्चा करो। ठीक है, आप खुद ये काम कर सकते हैं। चलो ठीक है, अगर आपने डिसर्टेशन कहीं और से पैसा दे करके बनवा के ले भी लिया, लेकिन आगे काम तो आप ही को करना है। जब वकीली में आएंगे, जुडिशरी में जाएंगे तो वर्क आपको करना है, रिसर्च आपको खुद को करना है। तब क्या करेंगे? तब भी आउटसोर्स करेंगे और पैसा कितना खर्च करेंगे? राइट, जहां जरूरी है वहां खर्च करो, यहां जरूरी नहीं है। राइट, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रिक्वेस्ट विल बी टू डू इट योरसेल्फ, डू द डिसर्टेशन, राइट द डिसर्टेशन योरसेल्फ। और मैं बताऊंगा पॉइंट सिस्टमैटिकली कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, एंड इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। Okay. Before we go into the dissertation writing skills, there are a few more important things that I need to understand. What you need to understand is what is legal research, or what is a dissertation thesis, or what is PhD thesis, right? Research or dissertation is not just collection of information. Remember this thing. Many a times what we come across is students simply go on Google, they select a topic, they go on Google, they collect all the information, they simply copy paste that information and submit it as a dissertation. Again, that is not something which is acceptable. There may be serious consequences. Consequences क्या होंगे, penalties क्या हो सकते हो, मैं तुमको बाद में बताऊंगा, राइट? लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लो कि ये गलत है। रिसर्च डज नॉट मीन्स जस्ट कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि एक टॉपिक ले लिया, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस इन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, क्रिटिकल स्टडी, राइट? बस ऐसे कोई टॉपिक ले लिया, टाइटल तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन किया क्या? डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और थीसिस में डाल दिया, बस। और खुद ने कोई एफर्ट्स नहीं लिए, घर पे बैठे बैठे
पूरा डेटा कॉपी पेस्ट कर लिया एंड थीसिस बना लिया. Again, that is something which is not acceptable. So what exactly is research? Legal research. Legal research means addition, alteration, separation, upgradation, deletion or correction of existing knowledge. In simple words, आज के डेट में जो भी नॉलेज अवेलेबल है, जो भी चीजें अवेलेबल है, उसको हम और ज्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा बेनिफिशियल कैसे कर सकते हैं, कौन से प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिसर्च. एंड लीगल पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना, देन इट बिकम्स लीगल रिसर्च. कि अगर कोई लॉ है जो इनइफेक्टिव है तो उसको हम इम्प्रोवाइज करके कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं. अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उस पॉलिसी को हम लोगों तक कैसे पहुंचाए, इसका सॉल्यूशन देना, दैट इज लीगल रिसर्च. राइट. सो लीगल रिसर्च में इंक्लूड एडिशन ऑफ समथिंग न्यू टू द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ नॉलेज. इट मे बी अल्टरेशन, कि है ऑलरेडी, उसको थोड़ा सा अल्टर करना है, थोड़े से चेंजेस करने हैं उसमें. ठीक है. सेपरेशन, अपग्रेडेशन, डिलीशन और करेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग सोशल प्रॉब्लम. किसी भी तरह का लीगल रिसर्च जिससे कि सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है, जिससे कि सोसाइटी को या फिर लॉ मेकर्स को या फिर लॉ मिनिस्ट्री को कोई नया आइडिया आ रहा है, कोई नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज लीगल रिसर्च. राइट. रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज दिस इज समथिंग which may be asked to you at the time of your viva also. ठीक है. They may ask you what is legal research, or they may ask you what kind of contribution your legal research does to the society. कि आपने जो रिसर्च किया है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल कैसे है, बताओ. ठीक है. तो वहां आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपका रिसर्च सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल कैसे है, आपने ऐसा क्या किया है जिससे कि सोसाइटी को बेनिफिट होगा. राइट. सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट. What again is research? Legal research, systematic observation and finding solution on particular point. सोसाइटी में कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं है. हर सोसाइटी में, हर देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है. Being the lawmakers, being the part of the legal fraternity, it is our duty to find the solutions to these problems. Can anybody tell me what are the different types of प्रॉब्लम्स दैट यू सी अक्रॉस रिलेटिंग टू लॉ? कोई बता सकता है? माइक अनम्यूट करके बताओ प्लीज. ऐसा कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे आसपास में जो तुमको दिखाई दे रहा है, या फिर तुम कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में दिखाई देता है आपको, जिसको कि सॉल्व करने की जरूरत है? टेल मी, हरी अप. प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल. Sir, actually, the mics of the students are muted for the session. Okay. No issue. Yeah. Okay, fine. No issues. Okay, so there are so many problems which we see across. Ab you are the students of LLM, so I presume that you are already practicing advocates. I presume that you are practicing advocates. अब कोर्ट का प्रॉब्लम्स देखो. कोर्ट में प्रॉब्लम ये है कि जजेस को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं है. कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है. Right. So these are the problems. So when you are doing research on these issues and when you are providing solution to those legal problems, then it becomes a proper legal research. So when we are talking about legal research, we should try to find out the problems we should try to find out the solutions to the existing problems. Right. तुम्हारे LLM के वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि what is the solution that you have provided to the problem, or what is the problem that you have identified. कौन से प्रॉब्लम के ऊपर तूने सोल्यूशन दिया है. ठीक है. कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपने आइडिया बताया है, ये क्वेश्चन वाइवा में पूछ सकते हैं आपको. All researches should be scientific, systematic and verifiable. Whatever legal research you are doing, that should be done with a proper scientific method. ठीक है. Systematic, scientific, verifiable, मतलब कि आपने जो भी किया है वो बाद में फिर से वेरीफाई हो सके, उसको क्रॉस चेक अगर करते हैं तो फैक्ट्स बराबर निकले, ये लीगल रिसर्च है. प्रॉपर साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक क्या है वो अभी हम देखेंगे. साइंटिफिक का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल टेस्ट ट्यूब या फिर केमिकल्स लेके बैठने हैं, या फिर आपको मेजरमेंट्स लेके बैठने हैं. राइट. साइंटिफिक का मतलब यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स, certain procedure you have to follow while carrying out a legal research. Only then your research will be valid.
ठीक है. So all researches should be scientific, systematic and verifiable. Okay, this is a very short, very general idea about what is legal research. See, try to understand one thing कि हम जो टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं अभी, उसके ऊपर पूरा एक सेमेस्टर भी कम है, राइट? पूरा एक सेमेस्टर भी अगर हम उस पर डिस्कशन करें तो कम पड़ेगा. इतने ज्यादा ये इलॉबरेट पॉइंट्स है, इतने ज्यादा ये डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर हो सकता है. बट सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, we are going to cover the main points, important points only, and that too in a very short way, in a concise manner. ठीक है. Try to understand the importance of LLM dissertation first. जब तुम इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे तब तुम इस डिसर्टेशन का सीरियसनेस तुम्हारे समझ में आएगा, तब तुम इसको ज्यादा सीरियसली करेंगे. That is what, at least what I think. ठीक है. Importance of LLM dissertation from exam perspective, exam point of view. No doubt, you are doing this dissertation, you are preparing for the dissertation because you have to face the exam, you have to qualify your masters, right? That is one perspective, that is one very narrow thing to do. कि बस एग्जाम पास करना है इसलिए डिसर्टेशन करना है, ठीक है. That is one thing, no doubt. But trust me, there are other aspects to other importances of dissertation also. ऐसा नहीं है कि आपने डिसर्टेशन बना के साइड में रख दिया, उसको बाद में कोई पूछेगा नहीं. No. JMFC के इंटरव्यूज में जनरली जब स्टूडेंट्स पार्ट जाते हैं JMFC के इंटरव्यूज को, तो वहां पे उनको एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपका LLM हुआ है तो LLM में आपका डिसर्टेशन का टॉपिक क्या था. They ask this question to the candidates. Then the candidates give the answer and the judges start questioning on that topic itself. जो भी टॉपिक उसने बोला है फिर उसके ऊपर क्वेश्चनिंग होगा कि ठीक है आपने ये टॉपिक लिया, ये टॉपिक क्यों लिया, ठीक है. फिर उसके ऊपर आपने रिसर्च कैसे किए, फिर आपने जो सोल्यूशन बताया वो सोल्यूशन इफेक्टिव है क्या, वो सोल्यूशन आपने मिनिस्ट्री को भेजे क्या. इस तरह से क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाता है. सो डोंट थिंक दैट LLM इज लिमिटेड ओनली फॉर क्वालिफाइंग LLM एग्जाम. Dissertation is limited only for LLM exam. It is going to be helpful in the future also, right? In job interviews, not only in JMFCs but also in corporate also. If you are going in a corporate company, in a company, and there you are saying that you have done your LLM, they will definitely ask you the question, okay, what was the topic of your research? Dissertation, right? That one. Then the next point is about the code practice. Even if you do not do a job, even if you do not go for judiciary or corporate interviews, ठीक है, even in the code practice, this work that you have done in LLM dissertation is going to help you. ठीक है, dissertation का topic आपको help नहीं करेगा maybe, but dissertation prepare करते टाइम पे आपका जो research skill develop हुआ है, जो आपने techniques use की है, वही techniques आपको code practice में काम आएंगे. ठीक है, वही चीजें आपको code practice में काम आ सकती. और अगर आपका डिसर्टेशन का टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल नेचर का है, फॉर एग्जांपल राइट्स ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, डिवोर्स केसेस, ठीक है, चिल्ड्रन या फिर कंज्यूमर, ऐसे कोई टॉपिक्स के ऊपर अगर आपका डिसर्टेशन का टॉपिक है तो ये टॉपिक आपको कोर्ट प्रैक्टिस में भी काम आएगा. क्योंकि क्लाइंट्स बोलते हैं कि ये सर का डिसर्टेशन, ये सर का जो रिसर्च है वो कंज्यूमरिज्म पे अच्छा है, ठीक है, एडवोकेट साहब का रिसर्च वुमेन स्टडीज में अच्छा है, तो उनके पास चलते हैं केस लेके. तो इस तरह से डिस्कशन होता है क्लाइंट कम्युनिटी में, ये डिस्कशन होता है. सो यू हैव टू डू योर डिसर्टेशन इन दैट, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आल्सो. एक कोर्ट प्रैक्टिस में भी आपको ये चीज यूज करनी आनी चाहिए, ठीक है. एंड जनरल तो है ही, व्हेन यू आर डूइंग LLM dissertation, you are carrying out research, you are carrying out analysis, you are carrying out all the things that I have mentioned in the right side, ठीक है, वो सब चीजें तो आती ही है. तो ऑटोमेटिकली एक आदमी का इंटेलिजेंस, आदमी का नॉलेज बढ़ ही जाता है, ठीक है. व्हाट क्वालिटीज आर डेवलप्ड, अ पर्सन डेवलप्ड ओरिजिनलिटी, डेवलप्स ओरिजिनलिटी की कुछ ओरिजिनल आइडिया सर्च करना है एंड उसको सॉल्यूशन सर्च करना है, ठीक है, ओरिजिनलिटी आती है. रिसर्च स्किल्स डेवलप होते हैं, न्यूमेरिकल एनालिटिकल कैलकुलेशंस ज्यादा बेटर तरीके से हम कर पाते हैं, ठीक है. किसी चीज के न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करना और उसका एनालिसिस करना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है. मेनी अ टाइम्स व्हाट आवर students feel, my students come across, is they don't understand how to collect the numerical information also, कि numerical information collect कैसे करें, ठीक है, और collect करने के बाद में उसको proper analysis कैसे करें. ये एक बहुत बड़ा problem होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा problem होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक केस आया था, मेरे एक स्टूडेंट ने केस लिया था
कि डेजर्टेशन लिया था कि स्टडी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस अगेंस्ट अ मुस्लिम वुमेन, राइट, उसने केस लिया था। तो मैंने उसको पूछा कि हाउ यू आर गोइंग टू पेनिट्रेट इनटू दैट काइंड ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा रिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, तो वहां पे आप कैसे जाओगे और कैसे उनको पूछोगे और कैसे उसका डेटा कलेक्ट करोगे? इज इट गोइंग टू बी दैट सिंपल, right? But somehow he took the topic, he took the help of the community leaders, community people, and he carried out the research. He himself was a Muslim, ठीक है, so it became very much easy for him. अब यही चीज आप थोड़ा सा सोचो कि यही चीज अगर कोई यही टॉपिक अगर कोई हिंदू लेता तो उसके लिए पॉसिबल होता क्या कि एक मुस्लिम वुमेन को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसके बारे में रिसर्च करना, इट्स नॉट दैट सिंपल. Try to understand this, right? So collection of data, analysis of data in itself is a very powerful skill, right? You have to be very careful, very critical when you are doing all such kind of research. Then comes the communication skills. When you are doing the research by your own, automatically you develop a confidence कि तुमने खुद ने किया है तो तुमको पता है इसके बारे में, एंड जब तुमको कोई चीज पता होती है तो आप वो चीज ज्यादा बेटर तरीके से ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि लॉ ऑफ थॉट के ऊपर एक 10 मिनट का लेक्चर दो तो आप शायद नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अपने बारे में एक आधे घंटे का लेक्चर दो तो आप कॉन्फिडेंटली बताएंगे. आधे घंटे में आप अपने बारे में पूरी मालूमात देंगे. क्यों? क्या फर्क है? क्योंकि लॉ ऑफ थॉट पढ़ के काफी टाइम हो गया है, आप शायद उसके प्रोविजन सब भूल गए, लेकिन आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता है, सो यू विल कॉन्फिडेंटली स्पीक अबाउट इट. सो दिस समवेयर समहाउ improves your communication skills also. Problem identifying, problem solving, pressure management, etc. All these things are these are some of the things which a person may develop when he when he does LLM dissertations or such kind of reports by himself. Not just LLM dissertation. मैंने पहले ही बताया था कि हम LLM dissertation word यूज कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें PhD में भी कॉमन है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी है, रिसर्च आर्टिकल राइटिंग में भी है, और बहुत सारी जगह है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे ये चीज काम आती है, ये स्किल्स काम आते हैं, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स you will develop when you are doing LLM dissertations or report writings on your own with utmost sincerity. Okay. Let's come to the part of dissertation report. Dissertation report का format template हमने हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है, और हमारा जो वर्कशॉप हुआ था जहाँ पे के लातूर के भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, उनके साथ भी हमने ये शेयर किया है. सो आई होप यू हैव दैट टेम्पलेट विथ यू. नहीं होगा तो आप जिन्होंने अटेंड किया था वर्कशॉप उनके पास से ले लो, या फिर मुझे मैसेज करो, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है. आई शेयर माय नंबर विथ यू एट द एंड, ठीक है, बट आई विल गिव इट टू यू, नो इश्यूज. बट डिसर्टेशन फॉर्मेट का ये एक डिसर्टेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है. फर्स्ट विल बी द कवर पेज, सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, सो एंड सो, देयर आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. ये चीजें आई होप कि ये चीजें तुमने अभी देखी होगी और तुमने शायद इसको प्रिपेयर भी करके रखा होगा, ठीक है. कवर पेज में क्या रहेगा? टाइटल ऑफ डिसर्टेशन, द टाइटल ऑफ यूनिवर्सिटी, द टाइटल ऑफ गाइड, सुपरवाइजर, देन द टाइटल ऑफ द नेम ऑफ द रिसर्चर एंड एक्सेट्रा. देयर आर सो मेनी थिंग्स. एक पर्टिकुलर टेम्पलेट, एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट रहेगा. इसमें ध्यान देने वाली बातें कुछ है. सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, लेट मी शो यू. सी, this is kind of a certificate that you have to present attach in your LLM dissertation. और सर्टिफिकेट का एक सेंटेंस जो मैंने हाईलाइट किया है उसको केयरफुली देखो. What does it say? This dissertation is a record of bona fide research work done by me under my guidance, done by the name of the student under my guidance and supervision. सर्टिफिकेट क्या बोल रहा है? क्या है कंटेंट सर्टिफिकेट का? कि तुम्हारा रिसर्च सुपरवाइजर, तुम्हारे कोऑर्डिनेटर, तुम्हारे प्रिंसिपल ये लिख के दे रहे हैं कि तुमने डिसर्टेशन पूरे ईमानदारी से बोनाफाइड रिसर्च वर्क करके किया हुआ है, गुड फेथ में किया हुआ है, तुम्हारा रिसर्च वर्क ओरिजिनल है. ये तुम्हारे सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल तुमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं. अब मुझे बोलो कि अगर तुमने डुप्लीकेट रिसर्च सबमिट किया है, कॉपी पेस्ट वाला रिसर्च किया है, किसी और का रिसर्च लाके यहाँ सबमिट किया है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? जस्ट इमेजिन, सर्टिफिकेट बोगस हो जाएगा ये,
एंड सर्टिफिकेट अगर बोगस हो रहा है तो फिर जो सुपरवाइजर ने सिग्नेचर किया है, जो बाकी लोगों ने सिग्नेचर किया, उनका क्या होगा? serious consequences. The issue may get extremely serious, right? So the request is, again, do the research by yourself. Try to bring something new into your research. बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज करना है ऐसा नहीं है. हम लोगों को क्या जीएसटी नहीं इंट्रोड्यूस करनी है, हम लोगों को डिमोनेटाइजेशन नहीं करना है, इतने बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है हमको बस एक छोटा सा एलएलएम का डेजर्टेशन, तो छोटा सा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्व करना है. आपने अभी तक तो टाइटल्स वगैरह ले लिए होंगे, टाइटल्स फाइनलाइज कर लिए होंगे, ठीक है. तो अब आपके पास में थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप है कि आप टाइटल तो जो है बस उसी में करना है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते, बट जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ ओरिजिनलिटी लाने की कोशिश करो, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट सर्टिफिकेट दैट आई वांटेड टू शो यू. लुक एट द डिक्लेरेशन आल्सो. डिक्लेरेशन का फॉर्मेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, बट एनीवेज डिक्लेरेशन वर्ड है, ठीक है. डिक्लेरेशन में आप खुद यूनिवर्सिटी को क्या लिख के दे रहे हैं? फॉर्म्स माय ओन कंट्रीब्यूशन टू द रिसर्च, ठीक है. ये जो रिसर्च है ये तुम्हारे खुद का कंट्रीब्यूशन है, खुद का रिसर्च है. नेक्स्ट पैराग्राफ में, दिस वर्क हैज नॉट बीन सबमिटेड बाय एनी अदर डिग्री ऑफ दिस और एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज. ये डेजर्टेशन तुमने पहली बार किसी यूनिवर्सिटी के सामने सबमिट किया है, इसके पहले किसी ने सबमिट नहीं किया. व्हाट हैपेंस इज मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स जस्ट सर्च द इंटरनेट, दे डाउनलोड रेडीमेड डेजर्टेशन कॉपीज एंड दे सबमिट इट बिफोर द यूनिवर्सिटी. Wrong. This is total research done by me only and not copied from any other source. In case of any copyright violation or plagiarism, I will be solely responsible. अब यहाँ पे तुम क्या लिख के दे रहे हैं? नीचे सिग्नेचर, रिसर्च कैंडिडेट और उसका सिग्नेचर, सीट नंबर सबके साथ. यहाँ पे क्या लिख के दे रहे हैं कि ये वर्क तुम्हारा ओरिजिनल है, ठीक है. ये तुमने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, और कॉपी पेस्ट अगर निकलता है देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक छोटा सा पेपर है, लेकिन उस पेपर पे आप क्या लिख के दे रहे हैं, ठीक है. जो अगर आपने कोई गलत काम किया और उसके बारे में आपने कोई डिक्लेरेशन लिख के भी दिया हुआ है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस है. अब वकीली में तुमको पता होगा कि अगर वकीली में आपको पता होगा कि गलत काम कभी भी लिख के नहीं देना चाहिए. गलत काम बहुत होते हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट और कोई एविडेंटरी वैल्यू उसका होगा तो फिर उसका प्रॉब्लम हो सकता है. तो यहाँ तो आप लिख के दे रहे कि ये रिसर्च वर्क ओरिजिनल है. ये बातें मैं जेन्युइन रिसर्चर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ. मुझे पता है कि काफी सारे लोग जेन्युइन भी है, वो सिंसियरली सिस्टमैटिकली रिसर्च करते भी हैं, ठीक है. ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका के थोड़ा सा मैलिफाइड इंटेंशन हो सकता है. सो ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, ट्राई टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ ओरिजिनलिटी इन योर वर्क. Okay. If you look at the table itself, ठीक है, कवर पेज आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, डिक्लेरेशन आ गया, ठीक है. सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन में आ गया, आपको बताया एक्नॉलेजमेंट इज समथिंग दैट यू एक्नॉलेज, कि आपको किसी के आभार मानने हैं. आपका डेजर्टेशन, जिसने आपके डेजर्टेशन लिखने में हेल्प की, उसको अगर आपको थैंक यू बोलना है तो वो एक्नॉलेजमेंट के पार्ट में आएगा. वो आप जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं, जिसका नाम चाहे उसका नाम वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है. देन कम्स टेबल ऑफ कंटेंट्स. तो जो भी आपके डेजर्ट के सिनॉप्सिस है, पॉइंट्स है, हेडिंग्स है, सब पॉइंट्स है, वो सभी टेबल ऑफ कंटेंट में आएंगे. सो दैट इज अगेन अंडरस्टैंडेबल. देन कम्स लिस्ट ऑफ स्टैट्यूट्स रेफर्ड, ठीक है. लिस्ट ऑफ स्टैट्यूट्स रेफर्ड. आपके थीसिस राइटिंग में, डेजर्टेशन राइटिंग में आपने जो भी लॉज रेफर किए हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे मेंशन करो, ठीक है. जनरली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो रहेगा, ठीक है. उसके अलावा अगर सिविल लॉ, सिविल टाइप का अगर डेजर्टेशन है तो सिविल लॉज आएंगे. क्रिमिनल टाइप का डेजर्टेशन है तो क्रिमिनल लॉज आएंगे. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेंशन द लॉज इन फुल, ठीक है. एक्ट का नाम प्लस उसका ईयर आपको पूरी तरह से अच्छे से लिखना है. देन कम्स लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस. व्हाटएवर एब्रिविएशन you are using in your dissertation, you have to mention those abbreviations here in this column itself. आपने अगर कोई भी एब्रिविएशन आगे लिखा है, उसका रेफरेंस अगर यहाँ पे नहीं दिया है तो वो गलत हो जाता है, ठीक है. क्योंकि थीसिस पढ़ने वाले के पास में अगर पढ़ते पढ़ते अगर कोई एब्रिविएशन आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल DR डॉट लिखा हुआ है, तो अंडरस्टैंडेबल है कि DR डॉट का मतलब डॉक्टर होता है, ठीक है. डॉक्टर MSB से DR डॉट लिखा है तो ये एब्रिविएशन है. लेकिन ये एब्रिविएशन अगर लिस्ट में नहीं है तो वो गलत हो जाता है, ठीक है. हो सकता है कि किसी को पता नहीं कि DR डॉट क्या है, तो वो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन में आकर के चेक करेगा इसका मतलब क्या है.
लेकिन अगर यहाँ पे उसको मतलब नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है. सो वॉट एवर एब्रीवेशंस यू आर यूजिंग, HON'(BLE), तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ऑनरेबल. ऑनरेबल वर्ड को शॉर्ट में लिखते हैं तो वो भी यहाँ पे आएगा. SC मीन्स सुप्रीम कोर्ट, HC मीन्स हाई कोर्ट. ये सभी एब्रीवेशंस आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है. और ये चिंता मत करो कि एक पेज के बजाय 2 पेज हो रहे, 3 पेज हो रहे. ठीक है, स्टैट्यूट्स में भी पेजेस बढ़ रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा लॉज दिख रहे हैं. जो भी आपने लिया है वो सब यहाँ पे आना जरूरी है. नाउ कम टू द मेन पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, चैप्टराइजेशन. चैप्टराइजेशन कैसे करना है? ठीक है, पहले आपके डेजर्टेशन का पहले वाला पार्ट तो इजी है, बहुत ज्यादा नहीं है. कवर पेज डिजाइन करना है, सर्टिफिकेट का रेडीमेड टेम्पलेट है, एक्नॉलेजमेंट का डेटा मिल जाएगा तुमको, वो सब चीजें तुमको मिल जाएगी इजीली. मेन आता है चैप्टराइजेशन. चैप्टर्स कैसे बनाए, चैप्टर नंबर 1 क्या होना चाहिए, 2 क्या होना चाहिए, 3 क्या होना चाहिए. ठीक है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक जनरल आइडिया दिया हुआ है. नॉट नेसेसरी कि इसी टाइप से होना चाहिए. दिस इज नॉट काइंड ऑफ पत्थर की लकीर के बस ऐसे ही होना चाहिए. इसको आप अपने हिसाब से अल्टर कर सकते, चेंज कर सकते. मैंने जस्ट एक जनरल आइडिया दिया हुआ है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से चैप्टराइजेशन का सजेशन देता हूँ. और यही सजेशन, यही स्टाइल आपको पीएचडी के थीसिस में भी देखने को मिलेगी. Remember this thing. Many a times the PhD thesis also contains this kind of a chapterization. This is a very convenient and very easy kind of a way to do the chapterization. So first chapter will be of introduction. Second chapter will speak about the basic concepts. आपका जो भी research topic है उसके basic concepts भी discuss करेंगे. Third chapter will be of international laws relating to the topic. Fourth will be national laws. Then comes judicial decisions, judicial precedents, judicial judgments of the court. Then comes data analysis, and finally comes conclusion and suggestion. Generally, 6 to 7 chapters are more than sufficient for writing LLM dissertation or PhD thesis or a research report. ठीक है, more than sufficient. ठीक है, उससे ज्यादा जाएंगे तो थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी या फिर रिपीटेशन हो सकता है. So 5 to 7 chapters are sufficient for it. ठीक है, अब देखते हैं कि एक एक चैप्टर में क्या है. Okay, so here I have taken one example of, let's say, cyber crimes. ठीक है, समझने के लिए मैंने यहाँ पे साइबर क्राइम्स की, let's say कि I am doing my LLM dissertation on cyber crimes and securities. ठीक है, ये टॉपिक के ऊपर मेरा डिसर्टेशन है. Now what will be the chapterization? चैप्टर नंबर 1 बहुत बेसिक, बहुत कॉमन रहता है और यही पॉइंट्स आने चाहिए तुम्हारे. चैप्टर नंबर 1 में यही सब सिनॉप्सिस, यही सब पॉइंट्स आना जरूरी है. ठीक है, फर्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा. आप पढ़ सकते थे, आपके सामने है पूरा. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 शुड कंटेन ऑल दीज पॉइंट्स, चाहे वो एलएलएम का डिसर्टेशन हो या फिर आपका पीएचडी का थीसिस हो, ये चीजें कॉमन होंगी. राइट, सो इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन you will give general idea as to what is cybercrime, general idea, current issue or general idea about what is cybercrime. Then you will speak about statement of problems कि अब जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है, एग्जिस्टिंग साइबर क्राइम, साइबर लॉज में प्रॉब्लम क्या है, वो मैं आइडेंटिफाई करूंगा और वो मैं यहाँ लिखूंगा. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, आई विल गिव यू द एग्जांपल्स आल्सो. अभी से सुन लो ये पॉइंट्स. ठीक है, देन कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च कि मेरा रिसर्च गवर्नमेंट के लिए, लॉ मेकर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, किसके इंटरेस्ट में, मेरे रिसर्च से सोसाइटी को क्या फर्क पड़ने वाला है. दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च. देन देयर इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च कि रिसर्च जब करते हैं तो हमारा, मेरा जो रिसर्च है उसका एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ. ठीक है, दैट विल कम अंडर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. देन हाइपोथेसिस, I'll explain all these things: hypothesis, methodology, proposed plans, chapter wise, etc., etc. Scheme of chapters. ठीक है, so these are the common points that should come in chapter 1. chapter 2 से चीजें बदल जाएंगी. chapter 1 में सभी के points common रहेंगे. ठीक है, and according to the title, the flow of study will continue. ठीक है, see, जैसा मैंने बताया कि मुझे रिसर्च करना है साइबर क्राइम्स के ऊपर, तो मेरा ओपिनियन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. तो मुझे अभी प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आज के डेट में साइबर या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं एंड पुलिस ऑफिशियल्स, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है. तो मेरा ये ओपिनियन है कि पुलिस वालों को साइबर
क्राइम से रिलेटेड नॉलेज कम है, उनको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल्स नहीं, उनमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल नहीं है। अगर मेरा कंप्यूटर अभी हैक हो जाता है या फिर अगर मेरे बैंक अकाउंट से पैसा चोरी हो जाता है और अगर मैं नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करूं तो पुलिस वाले को समझ में नहीं आएगा क्या करना है, राइट? द पुलिस ऑफिशियल विल गेट कंफ्यूज, he will not understand what to do next, right? So that is the problem that we have in the society today. So whatever problem you are saying, you have to mention here. Lack of expertise on the part of police, prosecutors, court, etc. Many a times the judge also does not understand as to how to deal with such kind of technologies. ठीक है, एक केस में बहुत पहले की बात है जब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सीडीज वगैरह थे, सीडीज वगैरह नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे एंड एवरीथिंग. सो एक कोर्ट में एक जज के सामने एक एडवोकेट ने डिजिटल एविडेंस प्रेजेंट किया. मींस उसने बैंक का कुछ रिकॉर्ड एक सीडी में कॉपी किया और वो सीडी कोर्ट के सामने उसने प्रेजेंट किया. सीडी जो पहले डिस्क आते थे, राइट, अभी नहीं आ रहे वो, बट वो सीडी उसने कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया. तो जज ने उस सीडी को निकाला, उस सीडी को धूप के तरफ देख करके बोल रहा है इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है. जैसे हम पिक्चर फोटो के रील्स पहले देखते थे धूप के तरफ, उजाले के तरफ फेस करके उसको, तो वैसा वो देख के बोल रहा है कि इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है. ठीक है, इसमें क्या है, राइट? तो जज को ये मतलब जो जज, जो सीनियर जज थे, उनको ये नहीं पता था कि एक सीडी को कंप्यूटर में डालना रहता है, फिर आपको पूरा डेटा दिखाई देगा. वो बस हाथ में लेकर के उसको घुमा के देख रहे हैं कि क्या है इसमें. ठीक है, उनको दिख नहीं रहा है कुछ भी. सो द पॉइंट हियर इज मेनी अ टाइम्स इवन द जजेस do not have sufficient technical knowledge relating to cyber crimes. So the point here is whatever topic you have taken, you have to find out the problem in that topic. Okay, whatever problem you are going to solve, you have to mention that problem first. That is statement of problems. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है क्योंकि ये पीपीटी है, लेक्चर है, आपको ये थोड़ा सा डिटेल लिखना जरूरी है. Then comes the next point, that is importance of research. Now I am going to explain how my research is going to solve the problem. ठीक है, how my research is going to provide the solution to this problem. What are my solutions? What are my suggestions? That is the importance of research. ठीक है. Then comes aims and objectives. What is the aim behind the research? What is the objective behind the research? To explore the concept of cyber crime and security. मुझे देखना है कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, नए नए डेवलपमेंट्स क्या है साइबर से रिलेटेड, कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड, राइट? अगर आपका केस डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है तो आपका ओपिनियन ये रहेगा कि मुझे देखना है कि वुमेन कौन है, वुमेन किसको बोलेंगे, व्हाट इज द लीगल एज ऑफ गेटिंग मैरिड. ठीक है, व्हाट इज द जनरल कस्टमरी practice in case of marriages in India. Generally what we see in case of marriages that the women get married and she leaves her father's home and she goes to the husband's home. तो ये एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट. ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या है? ठीक है, डाउरी इज इलीगल, दहेज या डाउरी इज इलीगल, बट डॉवर इज लीगल. डॉवर या मेहर इज लीगल, दैट इज अ कस्टमरी पार्ट. तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मैं इस तरह से ये रिसर्च के बारे में स्टडी करने वाला हूँ. प्रॉब्लम बाद में आएगा, पहले हम बेसिक आइडिया स्टडी करने वाले. सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाटएवर थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू study or you are going to achieve in your research. All those things will come under aims and objectives. To study international developments. अब क्योंकि मेरा टॉपिक साइबर क्राइम से रिलेटेड है तो मैंने इंटरनेशनल रेफरेंस लिया है यहाँ पे कि मुझे देखना है कि इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप्ड नेशंस साइबर क्राइम को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कौन सी चीजें जो अभी तक हमारे पास नहीं आई है. ये भी हो सकता है. टू फाइंड आउट जुडिशियल रिस्पॉन्स के जुडिशरी इस चीज को कैसे डील कर रही है, जुडिशरी के सामने इस टाइप के केस आते हैं वो कैसे हैंडल करती है, उसके बारे में स्टडी करना है. ठीक है, एंड वेरियस इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स. ठीक है, और क्या क्या आएगा वो सब भी मैं यहाँ पे स्टडी करने वाला हूँ. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम एंड ऑब्जेक्टिव, यू विल गेट अ जनरल आइडिया एज टू व्हाट रिसर्च, what is the path, what are the different things you are going to achieve in your research, right? Hypothesis, proposed hypothesis. word आता है hypothesis या फिर proposed hypothesis. Now what is hypothesis? Hypothesis in simple words means अंदाजा. ठीक है, अंदाजा जिसको हम हिंदी में अंदाजा बोलते हैं, वो अंदाजा कि हमको क्या लगता है, what is our opinion. Just imagine a situation. अब ठीक है, आपके माइक म्यूट है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे. लेट्स जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि एक घर है, घर के अंदर से स्मेल आ रही थी
इसलिए नेबर्स ने पुलिस को बुला करके घर का दरवाजा तोड़ा। ठीक है, तो पुलिस वालों ने घर का दरवाजा बाहर से तोड़ा, नॉक किया तो किसी ने खोला नहीं, फिर पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ के अंदर गए, इसका मतलब दरवाजा अंदर से बंद था। ठीक है, पुलिस वालों ने देखा कि घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है, पुलिस वालों ने यह भी देखा कि घर के सब सारे खिड़कियां और बाकी के दरवाजे बंद है। पुलिस वालों का पहला अंदाजा क्या होगा? What will be the first hypothesis that the police officials will form regarding the dead body? ठीक है, अब काफी सारे लोगों के माइंड में, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनके माइंड में एक आंसर आया होगा कि ये सुसाइड है। जितने लोगों के माइंड में आंसर आया, 2000 करेक्ट, ये सुसाइड है। कैसे अंदाजा लगाया आपने? केस सॉल्व हो गया क्या? नहीं, अभी तो आपको लग रहा है कि ये सुसाइड है, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, बाकी के घर के दरवाजे खिड़कियां भी बंद है, इसका मतलब बाहर से कोई आया ही नहीं है। ठीक है, घर में ये अकेला है, इसका मतलब ये इसने शायद से सुसाइड किया होगा। दिस इज हाइपोथेसिस, राइट? ये आपका अंदाजा है। तो रिसर्च करने के पहले आपका अंदाजा क्या है, आपका आइडिया क्या है? ठीक है, उसके हिसाब से आप आगे रिसर्च चलेगा। मेरा अंदाजा ये है कि ट्रेडिशनल लॉज आर इनसफिशिएंट टू कंट्रोल साइबर क्राइम। जो हमारे जो लॉज बने हुए 2010 में, ठीक है, वो इफेक्टिव नहीं है। अब उन लॉज को चेंज करने की जरूरत है, और ज्यादा पावरफुल करने की जरूरत है, राइट? अब हमको लीगल सिस्टम में, जुडिशरी में चेंजेस लाने की जरूरत है टू इफेक्टिवली डील विद द साइबर क्राइम्स। ये मेरा अंदाजा है, ये मेरा ओपिनियन है। सो हाइपोथेसिस इज the statement of expectation or the prediction, right? Is the kind of a prediction that should be done at the very beginning itself. ये hypothesis prove होगा नहीं होगा वो बात की बात है। ठीक है, मेरे केस में वो सुसाइड है या नहीं है वो बाद में प्रूव होगा। अभी तो सुसाइड दिख रहा है मुझे, लेकिन वो सुसाइड है या नहीं वो बाद में मैं प्रूव करूंगा। बाकी और टेस्टिंग करूंगा, बाकी रिलेटिव से बात करूंगा, नेबर से बात करूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा। लेकिन अभी मुझे क्या लग रहा है कि ये सुसाइड है। So whatever you are feeling right now, that should be mentioned here as hypothesis. ठीक है? Then comes methodology adopted. One very important question that the external examiners ask you at the time of your viva. ठीक है? At the time of your JMSC interviews, at the time of corporate interviews, methodology adopted. आपने जैसे ही आपके डिसर्टेशन का टॉपिक बोला, वो पहला क्वेश्चन उनका ये रहेगा, मतलब क्वेश्चन उनका ये रहेगा कि ठीक है, आपने मेथड कौन सी यूज की है, विच टाइप ऑफ मेथडोलॉजी हैव यू यूज्ड टू कैरी आउट द रिसर्च। सो दीज आर सम ऑफ द मेथडोलॉजीज। इसमें से एक या एक से ज्यादा मेथडोलॉजीज आप वहां पे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने आपका पूरा रिसर्च लाइब्रेरी में बैठ के, घर पे बैठ के, कंप्यूटर पे डेटा कलेक्ट करके, केसेस, स्टैट्यूट्स, रेगुलेशंस यूज करके बस इतना ही किया है, ठीक है, फील्ड वर्क नहीं किया है, सिर्फ बुक्स रेफर करके या फिर इंटरनेट रेफर करके आपने रिसर्च किया है, देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डॉक्ट्रिनल रिसर्च। ठीक है, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिनल रिसर्च। सो योर आंसर शुड बी, सर आई हैव यूज्ड डॉक्ट्रिनल मेथड टू कैरी आउट माय रिसर्च। ठीक है। सेकेंड, नॉन डॉक्ट्रिनल, जिस टाइप के रिसर्चेज में फील्ड वर्क जरूरी होता है, तुमको एक्चुअली लोगों के पास जाकर के, फील्ड में जाकर के काम करना जरूरी होता है, दैट इज कॉल्ड एज non-doctrinal research. ठीक है, that is called as non-doctrinal research. How many people have benefited from Ujjwala Yojana of the government? ये डॉक्ट्रिनल, नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च का पार्ट है। तो अब आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा, ठीक है, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। That will come under the category of non-doctrinal research. तो अगर आपका टाइटल, whatever is your title, you have to decide whether it is doctrinal or non-doctrinal. Then comes qualitative, that is analysis of personalities, trends, customs, human behavior. Qualitative means quality, कि आप किसी चीज की क्वालिटी पहचान रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, वो क्वालिटेटिव रिसर्च की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, वो क्वालिटेटिव, जैसे कि एक कंज्यूमर एक सुपरमार्केट में आने के बाद में ऑन एन एवरेज कितना परचेज करता है, जस्ट मिनट, उसका परचेजिंग कितना होता है। एक कंज्यूमर एक नॉर्मल दुकान में जाने के बाद में कितना परचेज करता है, और एक शॉपिंग मॉल में आने के बाद में कितना परचेज करता है। डेफिनेटली दोनों में फर्क है। आप लोग खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नॉर्मल दुकान में जाने के बाद में आदमी बहुत हो गया 200-500 की चीजें खरीदेगा। अगर 500 की चीजें खरीदता है, तो वही आदमी जब मॉल में जाता है, डीमार्ट,
या फिर बिग बाजार टाइप की दुकानों में जब जाता है तो वो 2000 की खरीदी करता है। क्यों? क्या फर्क है? दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी चेंज आ गया उसके पर्सनैलिटी में जिसकी वजह से वो ज्यादा खरीदी कर रहा है। ठीक है, सो दैट इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव इज मोर ऑफ न्यूमेरिकल इन नेचर, नंबर्स का खेल रहेगा क्वांटिटेटिव में। अगर आपने नंबर्स से रिलेटेड रिसर्च वर्क किया है, रिसर्च वर्क का टॉपिक लिया है, तो देन इट विल बी क्वांटिटेटिव रिसर्च। पेंडेंसी ऑफ केसेस इन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिंस लास्ट 10 years। ठीक है, तो ये फिगर हो गया, ये नंबर्स हो गए कि 10 साल में कितने केसेस पेंडिंग थे, कितने डिसाइड हो गए, कितने नए फाइल हुए। सो ऑल दिस इज अबाउट नंबर्स। सो दैट विल कम अंडर क्या? क्वांटिटेटिव रिसर्च। देन देयर इज प्रैग्मेटिक रिसर्च, मिक्स रिसर्च है कि भाई केसेस भी पढ़ने हैं, स्टैट्यूट भी पढ़ने हैं, लेकिन फील्ड पे जाके काम भी करना है। ठीक है, नंबर्स भी कलेक्ट करने हैं, लेकिन साथ में बिहेवियर भी देखना है। तो दैट इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रैग्मेटिक रिसर्च। अगर कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारा डॉक्टरल बोलना है या नॉन डॉक्टरल बोलना है या फिर कौन से टाइप का है, तो प्रैग्मेटिक रिसर्च इज द सेफेस्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड विच टाइप ऑफ रिसर्च यू हैव। इफ यू आर अनेबल टू डिसाइड कि मिक्स लग रहा है तुमको, देन प्रैग्मेटिक रिसर्च इज अ सेफ एस्केप। ठीक है, दैट इज मिक्स्ड रिसर्च। देन देयर कम्स पार्टिसिपेटरी रिसर्च एंड पार्टिसिपेटरी रिसर्च where the researcher himself participates in the research। अगर LLM का dissertation का टाइटल है study of people living in slums in, let's say, Mumbai Dharavi, the living conditions of people living in slums of Mumbai Dharavi मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ बुक पढ़ के रिसर्च नहीं कर सकते, आपको वहां जाना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा और डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कैसे रहते हैं। ठीक है, लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल लिविंग इन स्लम्स ऑफ मुंबई। ठीक है, सो जहां पे आप खुद होकर के वहां पे पार्टिसिपेट करके रिसर्च कर रहे हैं, देन इट विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। ठीक है, देन देयर इज डेटा कलेक्शन, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। डेटा आप जैसे चाहे जहां से मिल सकता है वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन इट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का या जो मेथोडोलॉजी के यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने इतने शॉर्ट में बताए हुए हैं, इनको स्टडी करने के लिए, इनको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए पूरा एक सेमेस्टर लगता है। You are well aware that you had one subject on research methodology in your LLM first year, so you can understand as to how deep this subject can be, how different layers these different types of researches में है। लेकिन मैंने यहाँ पे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत शॉर्ट में ये चीज बताई हुई है। ठीक है, नाउ कम्स द टूल्स ऑफ रिसर्च। LLM डिसर्टेशन के टूल्स, डिसर्टेशन लिखते टाइम पे क्या क्या अलग अलग टूल्स टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, literature, that is books, statutes, notifications, gadgets, interview method, you can have an interview with the stakeholders, questionnaires, surveys, projective test। ठीक है, ई पिक्चर टेस्ट जैसे मैंने नीचे इमेज में बताया हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के टूल्स अवेलेबल है, टेक्निक्स अवेलेबल है जिससे कि LLM का डिसर्टेशन या फिर PhD थीसिस हो सकता है। यू हैव टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टूल according to your own requirement, right? You have to use those proper tools। जहां सिर्फ डॉक्ट्रिनल रिसर्च है वहां पे लिटरेचर रेफर करो, हो जाएगा। लेकिन नॉन डॉक्ट्रिनल है तो वहां पे इंटरव्यू भी लगेगा, क्वेश्चनर भी लगेगा। ठीक है, जहां पे साइकोलॉजी की बात है, जहां पे हम साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पे प्रोजेक्टिव टेस्ट काम आएगा। प्रोजेक्टिव टेस्ट मतलब इंक पिक्चर टेस्ट। यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है, जो रिसर्चर है, वो अपने ऑडियंसेस को कुछ इमेजेस बताएंगे और इमेजेस पे से पूछेंगे कि भाई तुमको इस इमेज में क्या दिख रहा है। अब जैसे मैंने नीचे एक इमेज दिया हुआ है, तो इसमें अगर मैं तुमको पूछूं क्या दिख रहा है, तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के आंसर देंगे। एंड ऑल दैट डिपेंड्स अपॉन द साइकोलॉजी, इट टेल्स अस द साइकोलॉजी। सम विल से ये तो वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, सम विल से कि ये बैट के जैसा कुछ दिख रहा है, बैट के जैसा। ठीक है, कांचिड़ी या फिर चिमगादड़ के जैसा कुछ दिख रहा है। सम विल से कि बीच का जो चेहरा है वो किसी जानवर के फेस के जैसा लग रहा है। ठीक है, सम विल से कि इसमें मुझे भूत के जैसा कुछ दिख रहा है। सो ऑल दीज आर different ideas, and all these different ideas gives us the psychology of a person। So if your research is of that type, then you have to use
such kind of techniques, such kind of tools can be used. तो ये तो just एक example है 5 methods, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे tools use हो सकते हैं. One important thing about citations, ठीक है, जब भी आप कोई डेटा कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उसका साइटेशन, उसका रेफरेंस देना बहुत जरूरी है. अब रेफरेंस देने के 2 तरीके हैं. एक है इन फॉर्म ऑफ फुटनोट, के नीचे के फुटनोट पे, जो पेज के नीचे फुटनोट रहेंगे वहां पे तुम्हारे रेफरेंसेस आएंगे, या फिर इन टेक्स्ट साइटेशंस, कि आपका सेंटेंस खत्म हो गया, बस उसके आगे ही आपने उसका रेफरेंस दे दिया. ठीक है, तो अगर मैं कोई बुक रेफर कर रहा हूं तो बुक का साइटेशन मुझे इस टाइप से देना है. अगर फुटनोट टाइप में देना है तो क्या आएगा, ऑथर का नाम, साल, बुक का टाइटल, बुक का एडिशन और पब्लिशर. ठीक है, ये पूरा का पूरा वहां पे आना जरूरी है. और अगर मैं इन टेक्स्ट साइटेशन दे रहा हूं कि ब्रैकेट में ही दे रहा हूं, तो मुझे इस तरह से देना है, एशबॉर्न 2014. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज करके साइटेशंस दे सकते हैं. लेकिन बुक्स के मतलब अलग अलग चीजों की साइटेशंस देने का तरीका भी अलग अलग रहेगा. बुक होगा तो अलग तरीका, एडिटेड बुक होगा तो अलग तरीका. ठीक है, देन ई बुक्स होंगे तो अलग तरीके से रहेगा. ई बुक्स मतलब आपने किसी वेबसाइट पर से जाकर के कोई ई बुक पढ़ी है, कोई पीडीएफ पढ़ी है, वहां से आप कॉपी कर रहे हैं, तो उसका प्रेफरेंस इस तरह से देना पड़ेगा कि ऑथर का नाम, बुक का टाइटल, ठीक है, या फिर आर्टिकल का टाइटल, फिर अवेलेबल एट वेबसाइट का नाम. ठीक है, उसके साथ साथ आपने वो वेबसाइट कब देखी, असेस्ड ऑन 20 सितंबर 2021, 2022, 2023, व्हाटएवर, तो उसका डेट तक आपको देना पड़ता है. ठीक है, सो ई बुक्स का रेफरेंस अलग तरीके से रहेगा वेबसाइट के नाम के साथ. और अगर वेब पेजेस का देना है, ठीक है, ई बुक्स का रेफरेंस अलग, वेब पेजेस का देना है तो वेब पेजेस का रेफरेंस मैंने नीचे दिया हुआ है कि वो किस तरह से देना है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइटेशंस देने के भी अलग अलग तरीके हैं. ठीक है, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. Okay, then comes bibliography. As to what bibliography, what are the different references that you, whatever you have taken, you have to mention in the last part of our thesis, of your thesis, that is bibliography. ठीक है, तो bibliography में क्या क्या आ सकता है, एक्ट आएंगे, आपने जो भी एक्ट्स रेफर किए हुए, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी वगैरह वगैरह जो भी है, वो सबके नाम यहाँ पे आएंगे. देन कम्स नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, नोटिसेस एक्सेट्रा. तो बुक्स है तो बुक्स के नाम आएंगे विद द नेम ऑफ द ऑथर, प्रॉपर साइटेशंस यूज करना जरूरी है. रिसर्च आर्टिकल्स आएंगे, रिपोर्ट्स आ सकते हैं, वेबसाइट्स आ सकते हैं. रिपोर्ट्स का मतलब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो ऐसे कोई रिपोर्ट्स आपने रेफर किए हुए तो वो रिपोर्ट्स के नाम भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं. ठीक है, वेबसाइट्स के नाम यहाँ पे आएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट बिब्लियोग्राफी. ठीक है, ओके, आई थिंक वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट. एक मिनट. Okay, so bibliography was the last part actually, और अभी है बहुत सारा डिस्कस करने के लिए, बट अब यहाँ पास टाइम कम है. So let me just again tell you as to what are the things you have to mention in the other chapters. So first chapter में क्या आएगा ये तो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, बहुत बेसिक डिस्कशन है, बहुत बेसिक चीज है जो फर्स्ट चैप्टर में आएंगी. सेकेंड चैप्टर में रहेंगे बेसिक कंसेप्ट. बेसिक कंसेप्ट में क्या लिखना है, आपका जो भी टाइटल है, जो भी रिसर्च वर्क है, उससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट. अगर मैं साइबर क्राइम की बात करूं तो मेरे बेसिक कंसेप्ट क्या रहेंगे कि क्राइम क्या है, साइबर क्राइम क्या है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, हैकिंग किसको बोलेंगे, फिशिंग किसको बोलेंगे, ठीक है, पायरेसी किसको बोलेंगे. ये जो बेसिक वर्ड्स है, बेसिक कंसेप्ट है जो कि हमारे रिसर्च में हम यूज करने वाले हैं. ठीक है, वो सभी बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आइडियाज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. ठीक है, लॉज नहीं. ठीक है, लॉस का पार्ट आगे है, यहाँ पे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है. कंप्यूटर क्या है, आईटी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये सब चीजें बेसिक कंसेप्ट में आएंगी. बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू द टॉपिक. अगर आपका टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस, तो डोमेस्टिक का मतलब क्या है, वायलेंस का मतलब क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, वुमेन क्या है, वुमेन के राइट्स क्या है. ठीक है, ये सब चीजें बेसिक कंसेप्ट में आ सकती है. ठीक है, थोड़ा सा आप अगर सर्च करेंगे तो आपको आइडिया भी आ जाएगा कि बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या चीजें हो सकती है रिलेटिंग टू ये टॉपिक. देन कम्स इंटरनेशनल लॉज. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लॉज लिखने हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है,
अब जैसे साइबर क्राइम है तो साइबर क्राइम से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे क्या डेवलपमेंट है, कौन से अथॉरिटीज है, इंटरपोल कैसे काम करता है, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, यूएन, यूनाइटेड नेशंस किस तरह से साइबर क्राइम्स को डील कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे साइबर क्राइम का प्रॉब्लम कितना बड़ा है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो सब इंटरनेशनल लॉज में आएगा। देन कम्स नेशनल लॉज। तो इंडिया में नेशन में कौन कौन से लॉज है टॉपिक से रिलेटेड वो आएंगे। तो इंडिया में एज फार एज साइबर लॉज इज कंसर्न देयर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो उसके बारे में आएगा कि वो एक्ट क्या है, उसके साइलेंट फीचर्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है, कौन से ऑफेंसेस है जो कि उसमें पनिशेबल है, तो वो सब नेशनल लॉज में आएंगे। देन कम जुडिशियल डिसीजंस, कि जुडिशरी के केसेस क्या है, साइबर क्राइम से रिलेटेड जुडिशरी ने किस तरह केसेस डिसाइड किए हुए, तो उसमें डिसीजंस आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के गाइडलाइंस हो सकते हैं, डायरेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ एक्सपर्ट कमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके चैप्टर नंबर 5 में आ सकती है, दैट इज जुडिशियल डिसीजंस। चैप्टर नंबर 6 इज अ वेरी टेक्निकल, वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ अ चैप्टर, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है डेटा एनालिसिस, मतलब कि आपने जो भी रिसर्च किया हुआ है, ठीक है, उसका जो भी डेटा तुमने कलेक्ट किया है, तो वो आएगा चैप्टर नंबर 6 में कि तुमने क्या डेटा कलेक्ट किया है। मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में साइबर क्राइम हर साल बढ़ता जा रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या डेटा मैंने कलेक्ट किया है और मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ कि ये मेरा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। मैं बोल रहा हूँ कि कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिशियल्स आर इनएफिशिएंट टू डील विद साइबर क्राइम्स, तो वो कैसे डेटा कलेक्ट किया मैंने कितने लोगों के इंटरव्यूज लिए, ठीक है, कितने सर्विस कंडक्ट किए, कितने व्हाट इज टेस्ट वगैरह किए मैंने, लिटरेचर कितना रेफर किया, तो वो सारा लिटरेचर को मैं चैप्टर नंबर 6 में एनालाइज करूंगा, ठीक है। जो मैंने काम किया है, डॉक्टरनल हो नॉन डॉक्टरनल हो, वो सब चैप्टर नंबर 6 में उसका एनालिसिस होगा। एंड फाइनली कम्स चैप्टर नंबर 7, दैट इज कंक्लूजन एंड सजेशन, ठीक है। कंक्लूजन एंड सजेशन के पार्ट में यू विल फाइनली कंक्लूड योर रिसर्च वर्क, जो भी तुमने रिसर्च किया है उसका आउटकम क्या है, what is the final result, final product of that research, that will be discussed in conclusion and suggestion part. So chapterization भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और इसका रेफरेंस, इसके आइडियाज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन से पॉइंट्स ले, इंटरनेशनल लॉ में कौन सा पॉइंट ले, कौन से सिनॉप्सिस होने चाहिए, तो बस तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड कोई एक लाइब्रेरी से बुक ले लो और बुक में कंटेंट पेज देखो। कंटेंट पेज में ही तुमको काफी सारे आइडियाज मिलेंगे कि भाई ठीक है, इंटरनेशनल लॉ पे ये ऑथर ने ये पॉइंट्स लिए हुए हैं, तो ये जितने भी रिलेवेंट पॉइंट्स हैं वो मैं अपने रिसर्च में ले सकता हूँ, ठीक है। नेशनल लॉज में कौन से पॉइंट्स लिए हैं, नेशनल लॉज को कैसे डिफाइन किया है ऑथर ने, तो वो पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स मैं अपने रिसर्च में ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी आप रिसर्च कर सकते हैं। जुडिशियल डिसीजंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, काफी सारे AIR वगैरह टाइप के लॉ बुक्स है तो उसमें भी मिल जाएंगे। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि रिसर्च करना कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा सिंसियरिटी, थोड़ा सा डेडिकेशन यहाँ पे देना पड़ता है और रिसर्च हो जाता है, ठीक है। Actually, there was a few more things that I wanted to discuss with you, but because of shortage of time, I'll not be able to discuss. ठीक है, outlooks of legal research वगैरह था, but ठीक है, हम फिर कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। So if you have any questions, then you can ask, or I have also given my mobile number to you. So if you want to ask the questions later on, या फिर मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, तो इस नंबर पे कर सकते हैं. We will have discussion later on. Okay, any questions? Students are allowed to unmute their mics and ask the questions and queries if they have any. Any questions? Hello, sir. Hello, sir. I'm Santosh Kulkarni. I'm in first year of LLM. Okay. And I'm going, I'm in business law. Okay. Sir, I would like to ask you, of course, after appreciating the knowledge you have given for the presentation of this dissertation, but I would like to ask you, when you say that it should be a novel problem, and it should not be a repetition. Now, the law is so vast a field that it's very difficult to know whether that was whatever I have chosen has been submitted elsewhere.
or whatever I have chosen is already chosen by somebody else. It's very difficult to know in Okay. such case. Right. So what can we Right. do for that? Okay. See, in my teaching to my students, I always tell one thing, that even the judges do not know all the laws. Even the judges do not know all the judgments of the court. It is highly impossible for a human mind to know everything. Okay? But what we are discussing here is that if you are doing a research, you should follow certain levels of ethics, certain level of principles. You should do a research in good faith, in a good faith way, right? हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल तुम्हारा रिसर्च किसी और से मैच नहीं होना चाहिए. ठीक है, हो सकता है कि आपने जो रिसर्च टॉपिक लिया है उस पर ऑलरेडी किसी और ने रिसर्च सबमिट किया है या फिर वो कर रहा है, लेकिन ये कहाँ तक पॉसिबल है कि आपका थीसिस और उसका थीसिस 100% सेम है, वर्ड टू वर्ड, पेज टू पेज सेम होगा क्या? ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट? आपका एक अलग तरीका रहेगा, अलग पर्सपेक्टिव रहेगा, उसका एक अलग तरीका रहेगा, अलग पर्सपेक्टिव रहेगा. एक्चुअली जो मेरा आगे वाला जो प्रेजेंटेशन का पार्ट था, जो मैंने स्किप कर दिया है एक्चुअली, तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ था कि एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया हो सकता है. ठीक है, एक ही चीज को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है. तो इसके बारे में मत सोचो कि उसने टॉपिक लिया है तो वो टॉपिक मैं नहीं ले सकता. हो सकता है कि वो एक अलग तरीके से सोच रहा है, वो अलग टेक्निक्स टूल्स यूज करके रिसर्च कर रहा है और आप अलग टेक्निक यूज कर रहे हो. ठीक है, सो वॉट एवर इज द मेथड, whatever research topic you have selected, just go with it. ठीक है, just make sure कि उसके ऊपर किसी ने already बहुत ज़्यादा research किया हुआ नहीं है. Now many a times students come to me with the same topic, critical study of domestic violence cases relating to women. Same topic, many a times every year students bring it to me. So I tell them that this topic has already been taken, the research has already been done. So you try to bring something new into it. ठीक है, so again the students try to bring something new to it. So हो सकता है कि research already हुआ है, but try to ignore that part and try to do the research in your own way. Just a minute. Actually ये जो मैंने example यहाँ पे दिया हुआ है, slide दिख रही होगी आपको. ठीक है, तो ये जो जीन्स वाला है, to understand the other side of the fact. ठीक है, ये एक्चुअली एक इंसिडेंट है जो कि मैं मेंशन करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था तो ठीक है, इतना ही मेंशन कर देता हूं मैं. ठीक है, कि एक कंपनी ने तमिलनाडु के एक गांव में एक ऑब्जर्व किया कि तमिलनाडु के गांव में सब लोग लुंगी पहनते हैं. एक XYZ गांव था, ठीक है, वहां पे सब लोग लुंगी पहनते हैं. तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे भेजा जाए. ठीक है, और देखते हैं कि अपने बिजनेस के क्या प्रोस्पेक्ट्स है. कंपनी वाज अ जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ठीक है, तो एक उनका सेल्समैन, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक रिसर्चर वहां पे गया. उसने कुछ दिन रहकर वहां पे रिसर्च किया और वापस आने के बाद में कंपनी को रिपोर्ट किया. उसने बोला कि सर हमारा प्रोडक्ट वहां पे बिल्कुल भी नहीं बिकेगा. क्यों? क्योंकि वहां पे तो सब लोग लुंगी पहनते हैं. ठीक है, हमारा प्रोडक्ट वहां पे नहीं बिकेगा क्योंकि वहां पे सब लोग लुंगी पहनते हैं. ये उसने रिपोर्ट कंपनी को दे दिया. कंपनी ने सोचा कि चलो भाई इसका रिपोर्ट तो आ गया, चलो एक और सेकंड ओपिनियन लेके देखते हैं, एक सेकंड रिसर्चर को भेज के देखते हैं क्या होता है. सो उन्होंने दूसरे रिसर्चर को वहां पे भेजा. दूसरे रिप्रेजेंटेटिव ने वहां पे कुछ दिन रह के फिर से रिसर्च किया और वो वापस आके कंपनी को बोलता है कि सर वहां पे हमारे प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा डिमांड हो सकता है क्योंकि वहां पे सभी लोग लुंगी पहनते हैं और उनको पता ही नहीं कि जीन्स क्या है. लुक एट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ठीक है, कि वहां पे लोग अभी भी लुंगी पहनते हैं, अभी भी ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जीन्स क्या है, जीन्स का कंफर्ट क्या है, जीन्स का स्टाइल क्या है. तो हमारा प्रोडक्ट वहां पे बढ़िया तरीके से बिक सकता है. यू सी द डिफरेंट ऑफ पर्सपेक्टिव. ठीक है, एक अलग तरीका, एक अलग आउटलुक हो सकता है जिससे कि हम रिसर्च कर सकते हैं. बाकी किसी ने किया है नहीं किया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Yes. Okay. Sir, last question I would like to... and it is a good thing that आप फर्स्ट ईयर में ही ये चीजों को पहले ही समझ ले रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको आगे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी. ओके. Thank you so much, sir. The one last question, sir, from my side, of course, that collecting references is also a very big challenge, particularly in law. Of course, in any field, when we go for research, it's a big task. But particularly, I find that case of law, it's again a very vast such a type of the ocean of collecting references. So coming to the point of our point of research, to be very selective, how can we go for this kind of selection, which
is much more relevant to the topic which we have selected? See, it actually depends upon what point you are discussing and what type of reference you are searching for. Okay, and whatever reference you are getting, you can just quote that reference in your thesis. So don't think, हो सकता है कि एक point के ऊपर बहुत ज़्यादा references available हो. There, as you said, there are hundreds and thousands of references are available. But whatever references you think is suitable for your research, you can take that references. But one precaution that you need to take, one precaution is that just make sure that the reference that you are taking is not outdated. Right? Many a times it happens कि हम किसी कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस लेते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं रहता है कि वो जजमेंट आउटडेटेड हो गया है, वो जजमेंट ओवर रूल हो गया है. ठीक है, jurisprudence, precedent. ठीक है, so वो outdated हो गया. Just try to make sure that the case is still standing, the case is still relevant, and then you can take the reference. Forget about all the other case laws then. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Okay. Any other Thank you, questions? sir, for your questions. Okay. Sir, I would like to ask, Thank you. can you please guide our students and give them an extra knowledge about what are the various penalties that are imposed for copying the already available data? Okay. The UGC, first of all, when you're talking about LLM dissertations, if you copy paste the data and if it comes to the notice of the university, your thesis will be rejected, right? You will fail in the exam. That is a very least thing that may happen to you in case of LLM dissertation. What we have seen, what I have experienced is that in case of LLM dissertations, plagiarism in LLM dissertations, generally the university does not severely punish the students, they simply fail the students. Okay. But in case of PhD thesis, the punishments are much more strict, right? There may be severe consequences for plagiarism, and there is a UGC PhD ordinance. There is a law in place which speaks about plagiarism itself. कि अगर आपका plagiarism 10% तक है तो ओके है, 10% से अगर 40% तक आ गया तो एक्सेप्टेबल है सब्जेक्ट टू कंडीशंस, बट अगर 40% से ज्यादा है तो रिजेक्ट है, आपको रीसबमिट करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये सब चीजें वहां पे है. एंड इफ यू समहाउ प्ले ट्रिक्स, use some malpractices and still you submit the thesis, and if it comes to the notice of the university later on, then there may be much more serious consequences. We have seen that that some of the faculty members, they manipulated their thesis work, they submitted their thesis in the university, they got the PhD, and later on it came to the knowledge that his PhD was bogus. Actually it was not his PhD, it was someone else's. In such cases, the guide lost his guideship, the student, the PhD candidate lost his PhD degree, and at the same time he also lost his job. तो वहां पे बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उस चीज के हो सकते हैं, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगेन PhD ऑर्डिनेंस के ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से बात करने के लिए, सो मे बी सम अदर टाइम विल स्पीक. Thank you, sir. At least I think at this moment, this much of information will be sufficient for students to know that there are various impacts of using the already available dissertations of other students, and they would not this time at least they would not take such kind of help. Thank you, sir. I now Yes, don't take request yeah I now request our Assistant Professor Ravindra Shetty, sir, to give the vote of thanks. Thank you, Priyanka. Today's resource person, respected Dr. Mangal Singh Bisen, sir, Assistant Professor, Narayan Rao Chavan College, Nanded, our respected Principal Madam, Dr. P.P. Nathani, today's Program Coordinator, Assistant Professor Umesh Katekar, sir, my dear colleagues and my dear students. A very good afternoon to you all. Today, we had a successful webinar, which has well organized, well addressed, and well attended and enlightening session. It is my privilege to express my gratitude on behalf of Dayanand College of Law to all those
who contributed for the success of this program. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude to Dr. Mangal Singh Bisen sir, who spared his time, precious time, and thought it fitful to interact with the students and had a successful discussion on the topic of dissertation writing, where he explained the importance of dissertation in various areas. Not only it is of academic interest, but in various areas, how you can have a usefulness of understanding the dissertation writing and how it can develop your personality. And he also explained in detail about dissertation report and why it is to be done by the students themselves and not to be outsourced. In addition to that, he explained why you should not copy paste and how you can be subjected to penalizing through plagiarism. Sir, you also explained in minute detail about how a dissertation should be written. I'm sure all the students who are appearing for dissertation exam in the final semester of LLM second year would benefit from this. Thank you very much, sir, on my behalf as well as Dayanand College of Law, Lato. Thank you very much, sir, again. Secondly, Thank you, sir. My sincere thanks to our respected principal, Madam Dr. P.P. Nathani, for taking initiative for arranging such fruitful sessions. Next, I would like to express my thanks to Assistant Professor Umesh Katikar, who is the coordinator of the program today. Every year, for the benefit of students, he arranges such seminars so that students can be benefited, and that will result in beautiful writing of dissertations. My sincere gratitude to all the faculty members whose presence made this seminar a successful and memorable one. And lastly, my big thanks to all the students present here. And without your presence, this could not have been a successful webinar. Thank you very much. And lastly, our anchor, Priyanka, for your information and beautiful conducting of this program. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. We conclude the webinar now. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you.